Good morning, students. This is class 7th, History, Chapter 1, Tracing Changes Through 1,000 Years. This is our third class on this chapter. अब तक हमने देखा कि बीते हुए समय को जानने के लिए इतिहासकार स्रोतों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, आर्किटेक्चर है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड हैं, और वो इनके माध्यम से बीते हुए समय का अध्ययन करते हैं। लेकिन जहाँ उनको इन स्रोतों के माध्यम से इतिहास को समझने में सहायता मिलती है, वहीं उनको जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनके न मिलने से कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो तो लुप्त हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। उसके स्थान पर जो उनकी प्रतियां हैं, कॉपीज हैं, नकल हैं, जो लिपिकों ने की हैं, उसमें लिपिकों ने बदलाव कर दिए हैं। उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट को एज इट इज कॉपी नहीं किया है। तो इस तरह से उन लिपिकों की कॉपीज के माध्यम से, प्रतियों के माध्यम से इतिहास को समझने में इतिहासकारों को कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। लेट अस कंटिन्यू। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। द स्टडी ऑफ द 1,000 years between 700 to 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. At different moments in this period, new technologies made their appearance, like the Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and the firearms in combat. New foods and beverages arrived in the subcontinent: potatoes, corn, chilies, tea and coffee. Remember that all these innovations, new technologies and crops came along with people who brought other ideas with them as well. As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes. This was also a period of great mobility. Groups of people traveled a long distances in search of opportunity. The subcontinent held immense wealth and the possibilities for people to carve a fortune. One group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajputra, the son of a ruler. Between the 8th and 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed a Kshatriya caste status. The term included not just rulers and chieftains, but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. A chivalric code of conduct, extreme valor with great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. Other groups of people, such as the Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms and Kayasts, also used the opportunities of the age to become politically important. 700 से 1750 का 1000 वर्ष का समय को समझना इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है, क्योंकि इस समय में सिंचाई के क्षेत्र में पर्शियन व्हील, बुनाई के क्षेत्र में चरखा और लड़ाई के क्षेत्र में बंदूक जैसे तकनीक सामने आई, उसका प्रयोग हुआ। इसके साथ साथ यह 1000 वर्ष का समय एक गतिशीलता का समय है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, भारतीय उपमहाद्वीप में आए, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप एक समृद्ध क्षेत्र रहा। तो जब लोग यहाँ आए नए अवसर की तलाश में, तो अपने साथ नए विचार ही नहीं लेके आए, अपने साथ वो अपना खाना, भोजन, पेय पदार्थ जैसे
आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी वो लेके आए। और इसी तरह से जो लोग आए यहाँ पर, उनमें एक ग्रुप, एक समूह लोगों का था जिन्हें राजपूत कहा गया। राजपूत शब्द राजपुत्र से निकला है, राजा का बेटा जिसका अर्थ है। और राजपूत शब्द का अर्थ राजा का बेटा के अलावा लोगों के लिए भी किया जाता है जो सिपाही थे, जिन्होंने सेना में भर्ती हुए और लड़ाइयाँ लड़ी। और कवियों और भांडों ने उनको वफादार और साहसी होने जैसे गुणों से युक्त पाया, और वो अपने आप को क्षत्रिय भी कहते थे। राजपूतों के अलावा मराठे, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ वो लोग भी भारतीय उपमहाद्वीप में बेहतर अवसरों की तलाश में आए। Throughout this period, there was a gradual clearing of forests and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. Changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate. Others started tilling the land and became peasant. This new peasant groups gradually became to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries, and temples. They became part of large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. As a result, significant economic and social differences emerged amongst peasants. Some possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with agricultural activity during the lean season. As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcastes and ranked on the basis of their background and their occupations. Ranks were not fixed permanently and varied according to the power, influence, and resources controlled by members of the jati. The status of the same jati could vary from area to area. यहाँ हम देखते हैं कि 700 से 1750 का जो 1000 वर्ष का समय है, उसमें न केवल लोग बाहर से भारतीय समृद्ध उपमहाद्वीप में अच्छे अवसरों की तलाश में आए, नए आविष्कार हुए, नई तकनीक सामने आई, बल्कि इस पीरियड के दौरान भारी मात्रा में जंगलों को साफ किया गया, खेती को बढ़ावा दिया गया और जंगल में रहने वाले लोगों को बाहर जंगल छोड़कर जाना पड़ा। जो नहीं गए उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। इस तरह से जो नए किसान थे, जिन्होंने खेती करनी शुरू की थी, वो बाजार से जुड़ गए, पुजारियों से जुड़ गए, मठों से, मंदिरों से जुड़ गए और उनको अब अपने उत्पादन करने के साथ साथ उनको अब उत्पादन के बदले उनको वहां के जो स्थानीय लॉर्ड थे उनको कर भी देना, टैक्स भी देना पड़ता था, उनको सेवाएं भी प्रदान करनी पड़ती थी। परिणाम क्या हुआ कि जो किसान थे, जो नए किसान थे, वो कुछ लोगों ने खेती की, उसके साथ साथ पशुओं को भी उन्होंने रखरखाव किया, उनको पाला और कुछ लोगों ने कारीगरी का काम शुरू कर दिया। इस तरह से अलग अलग तरह से उनके काम में विभिन्नता हम देखते हैं और धीरे धीरे इसी तरह से जाति शब्द भी सामने आया और वो लोग जाति के रूप में जाने जाने लगे और उनकी जाति उनके व्यवसाय के आधार पर निर्धारित की गई। इस तरह से लेकिन यहाँ एक बात समझने योग्य है, वो यह है कि जो एक जाति के लोग हैं अलग अलग स्थान पर रहे, हालांकि उनका जो आर्थिक स्टेटस है वो समान नहीं था। एक स्थान पर एक जाति के लोग धनी हो सकते थे, ज्यादा पावरफुल हो सकते थे, जबकि दूसरे स्थान पर उसी जाति के लोग कम पावरफुल
और कम पैसे वाले हो सकते थे। जातीज framed their own rules and regulations to manage the conduct of their members. These rules and regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as the Jati Panchayat. But Jatis were also required to follow the rules of their villages. Several villages were governed by chieftain. Together they were only one small unit of a state. अब जो जातियां बनी नए किसानों से जिन्होंने खेती करनी शुरू कर दी, उनके अपने कायदे कानून नियम होते थे जिससे वो अपनी जाति के कार्य व्यवहार को, आचार व्यवहार को रेगुलेट करते थे। और उनकी जो नियम होते थे वो उनकी जाति की पंचायत के द्वारा निर्धारित किए जाते थे। हालांकि ये अलग अलग जाति के लोग जिस गांव में रहते थे उस गांव के नियमों का पालन भी करते थे। थैंक्स।